Welcome students. Students, as we know how to pass journal entries by using what is called as traditional approach and modern approach. The next step that we are going to discuss in this as well as upcoming videos is how to record the special, that is complex or well said difficult journal entries. बच्चों अभी तक हमने जो जर्नल एंट्रीज पढ़ी, जिन ट्रांजैक्शंस की, दे वर क्वाइट इजी. बट अब बच्चों आपको कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस पढ़ने हैं जिनकी एंट्रीज थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं, थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से स्ट्रक्चर्ड की गई हैं. तो चिल्ड्रन, फॉर दिस पर्पस वी नीड टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न रूल्स दोनों कैसे अप्लाई होते हैं. चिल्ड्रन, देर आर सर्टन एंट्रीज जिनको आप मॉडर्न अप्रोच से ईजिली हैंडल कर सकते हैं, बट देर आर सर्टन जिनको हम ट्रेडिशनल अप्रोच से फॉलो करते थे. तो बच्चों, सबसे पहले हम स्पेशल एंट्रीज पढ़ने से पहले एक कंपैरिजन कर लेते हैं अपने ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच का. बच्चों, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच का कंपैरिजन हम पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, बट बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, दे आर टू बी अप्लाइड इन अ प्रॉपर मैनर, दैट्स वाई कंपैरिजन इज नीडेड वंस अगेन. सो चिल्ड्रन, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच हम जिन अकाउंट्स को रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में टैंजिबल एंड इनटैंजिबल बोलते थे, इन मॉडर्न अप्रोच वी क्लासिफाई देम एज असेट्स सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, एटसेट्रा. Those accounts which were classified as personal accounts in traditional approach, in modern approach children we classify them as debtors for assets, then capital representing the owner जो वहाँ पे personal account था traditional approach में, and liabilities that is creditors और bank loan. तो बच्चों, ट्रेडिशनल अप्रोच का पर्सनल अकाउंट मॉडर्न अप्रोच में लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड असेट्स में डेटर्स हो जाता है. देन चिल्ड्रन, इन ट्रेडिशनल अप्रोच व्हाटसोएवर वाज कॉल्ड एज नॉमिनल अकाउंट, इन मॉडर्न अप्रोच वी क्लासिफाई देम एज एक्सपेंसेस एंड इनकम्स. सो चिल्ड्रन, आई होप सो दिस कंपैरेटिव चार्ट इज क्वाइट क्लियर. इन ट्रेडिशनल जो रियल होते थे वो यहाँ पे असेट्स हो गए. In traditional, what was personal account, here they are debtors in the category of assets. Then we have capital and liabilities. And in traditional approach children, what was classified as nominal, here they are classified as incomes. Children, proceeding further with their rules, just have a glance look at them as well. As per traditional approach children, personal account rule was debit the receiver, credit the giver. As per traditional approach children, the rule for real account was debit what comes in, credit what goes out. And children, as per nominal account traditional approach, the rule was debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. In all three accounts that we have classified here children, the similarity is हम debit हमेशा benefit aspect को address करते हैं and sacrifice is treated as credit. As per modern approach children, the rule is debit the increase in asset, credit the decrease in asset. For expenses children, the rule is debit the increase. For capital and liability children, the rule is debit the increase. Sorry children, it is debit the decrease and credit the increase. Children, I repeat, for capital or liability, it is debit the decrease and credit the increase, and for incomes it is credit the increase. So children, I go through once again. For assets we say debit the increase and credit the decrease. For expenses we say debit the increase. And children, for capital or liabilities it is debit the decrease and credit the increase, and last for incomes it is credit the increase. सो चिल्ड्रन, अब जब आप जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, दे आर क्वाइट डिफिकल्ट इन नेचर, तो आपको कहीं पे हो सकता है ट्रेडिशनल रूल्स फॉलो करने पड़े और कहीं पे मॉडर्न रूल्स. देयर इज अ क्वेश्चन अमंग चिल्ड्रन कि सर हमें पता कैसे लगेगा विच रूल्स आर टू बी अप्लाइड व्हेन. बच्चों, आपको पता लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स डेवलप हो जाता है व्हेन वी हैपन टू स्टडी देम.
So children, I hope so. The rules of debit and credit as per traditional and modern classification is quite clear. Now let us start children with multiple complex or difficult journal entries one by one. They are 30 to 35 in number. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंड फोरमोस्ट विद व्हाट इज कॉल्ड एज कंपाउंड जर्नल एंट्रीज. नाउ बच्चों कंपाउंड वर्ड का मीनिंग एज वी हैव स्टडीड इन द सब्जेक्ट कॉल्ड केमिस्ट्री in previous classes, that is a combination, a mixture of two or more acids and salts, you can say it is called as compound. वैसे ही बच्चों हमारी जर्नल एंट्रीज में भी कंपाउंड एंट्रीज होती हैं. देयर इज एन एग्जांपल, June 28th the transaction is paid salaries and again June 28th the transaction is paid rent. Children, for paid salaries the journal entry is salary account debit to cash. Rule is debit all expenses, credit what goes out. So the entry becomes the salary account debit to cash. And for rent paid children, same rule we apply, rent account debit being an expense to cash, credit what goes out. Now children, what we see the similarity here is this, जो कंपाउंड एंट्री का रूल है, जब भी बच्चों मोर देन वन ट्रांजैक्शंस आपको दिए हो, मोर देन वन ट्रांजैक्शन इज गिवन, अगर इन दोनों ट्रांजैक्शंस या तीन चार कितने भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो बच्चों, if the date is same and one account is same on the particular side, या तो बच्चों डेबिट में सेम हो जाए या क्रेडिट में सेम हो जाए, मिनिमम एक साइड पे सेम होना चाहिए बच्चों. दोनों में हो गया तो बहुत अच्छी बात है. तो बच्चों अब आप दोनों एंट्रीज को अलग अलग नहीं पास कर सकते, आप इन दोनों को एक साथ मर्ज कर देंगे. सो चिल्ड्रन, लाइक वी कैन सी इन आवर एग्जांपल, both the entries have a common date, that is June 28th. June 28th, I have marked it on the screen children. In both the entries children, we see that cash is listed on the credit aspect. बच्चों दोनों एंट्रीज में कैश क्रेडिट साइड पे लिस्टेड है. तो बच्चों हमारा रूल काम कर गया, द डेट इज सेम एज वेल एज वन अकाउंट इज सेम. सो चिल्ड्रन, वी कैन सिंपली पास अ कंपाउंड जर्नल एंट्री in place of a single journal entry, that is salary account debit 10,000, rent account debit 5,000 to cash 15,000. बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि आपको दो डेबिट कॉमन मिल जाए और क्रेडिट एक हो, तो अगेन डेबिट साइड में हम लिख देंगे कॉमन अकाउंट्स एंड क्रेडिट में अलग अलग अकाउंट्स आ जाएंगे. तो चिल्ड्रन रिमेंबर, व्हेनसोएवर द डेट इज सेम and one account is same, we can pass the entry what is called as compound journal entry. तो बच्चों रूल्स याद रखिएगा, प्रॉपर्टी एंड की है, अगर डेट सेम है बट अकाउंट सेम नहीं है तो आप कंपाउंड नहीं कर सकते. अकाउंट्स आर सेम बट द डेट इज नॉट सेम बच्चों, देन टू हम कंपाउंड नहीं कर सकते. कंपाउंड एंट्री कैन ओनली एंड ओनली बी पास चिल्ड्रन व्हेन both the rules are satisfied, that is to say the date should be same and one of the accounts at least should be same on the same side, that is either debit side पे दोनों same हो या credit side पे. तो children, I hope so the concept of compound journal entry gets clear. So children, wheresoever you get the opportunity to pass compound journal entry, please do not take any risk in passing separate entries, you will happen to lose marks. आपको बच्चों कंपाउंड एंट्री ही करनी पड़ेगी. Children, next we proceed with the concept of special journal entries related with goods. बच्चों goods से related 4 to 5 circumstances आ सकते हैं जहां आप अलग अलग एंट्रीज पास कर सकते हैं. Children, first we start with goods taken over for personal use by the owner. The transaction will be listed like this. Mohan the owner withdrew goods worth rupees 12,000 for personal use. बच्चों इसने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किए हैं तो हम बिजनेसमैन को ड्राइंग्स के नेम से रिप्रेजेंट करेंगे. चिल्ड्रन, ड्राइंग्स बीइंग अ पर्सनल अकाउंट, द रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ओनर इज द रिसीवर चिल्ड्रन, दैट्स वाई हम इसे डेबिट कर रहे हैं. क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई वी आर क्रेडिटिंग परचेज? Because children, stock is decreasing in the business which belongs to the category of asset, and the rule for asset is debit the increase, credit the decrease. So children, asset is decreasing, we are crediting stock represented as purchases.
So children, having a repetition to this, purchase आप क्यों लिख रहे हैं? रीजन इज दिस दैट यहां पे बिजनेस से स्टॉक डिक्रीज हो रहा है चिल्ड्रन. स्टॉक बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ असेट एंड व्हेन असेट डिक्रीजेज द रूल इज क्रेडिट द डिक्रीज एंड दिस स्टॉक हेयर इज रिप्रेजेंटेड विद परचेज अकाउंट बिकॉज जब हमने गुड्स बाय किए थे चिल्ड्रन, हमने परचेज को डेबिट किया था बीइंग एन एक्सपेंस. अब ये गुड्स हम सेल नहीं कर पाएंगे बच्चों, हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा इससे प्रॉफिट अर्न करने का, ये स्टॉक डिक्रीज हो रहा है. तो चिल्ड्रन व्हेन वी हैव बॉट देम अर्लियर वी डेबिटेड परचेज, नाउ इट इज डिक्रीजिंग, तो हम रिवर्स एस्पेक्ट में बच्चों इसको क्रेडिट कर देंगे. चिल्ड्रन आई रिपीट, हेयर वी आर यूजिंग परचेज बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स स्टॉक. स्टॉक बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ असेट एंड द रूल इज क्रेडिट द डिक्रीज इन असेट. तो बच्चों क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट दैट इज अ स्टॉक रिप्रेजेंटेड विद द वर्ड परचेज. मूविंग नेक्स्ट चिल्ड्रन, गुड्स गिवन एज चैरिटी. अब बच्चों अगर आपने कुछ भी गुड्स एज चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो अल्टीमेटली अगेन इट्स अ लॉस टू द बिजनेस, बट समहाउ दिस लॉस इज गिविंग एडवांटेज टू द बिजनेस बिकॉज ये मार्केट में बिजनेस का नेम एंड फेम क्रिएट करेगा. So children, example would come like this, transaction will be tested like this. Distributed goods worth rupees 12,000 as charity. You can see the shaded portion on the screen children. So children, here we'll debit charity account. The rule is debit all expenses for nominal account. Similarly children, हमारे goods business से जा रहे हैं, stock is falling down, stock belongs to the category of asset. The rule is debit the increase, credit the decrease. Children, here stock is decreasing, this stock is represented with the word purchase. That's why children हम purchase account को credit कर रहे हैं likewise जैसे हमने last transaction में children किया था. तो children I repeat, charity account will be debited being an expense giving name and fame to the business, and purchase is written because it represents the stock. Stock is classified children as an asset and the rule is debit the increase, credit the decrease. Here stock is decreasing, that's why we are crediting it using the word purchase account. Children, moving further in this category, we have what is called as goods given as free samples for the purpose of advertisement. Now children, many a times businessmen अपने गुड्स को among the customers distribute करते हैं as free samples just for the purpose of advertisement and promotion of their business activities. So children, this advertisement belongs to the category of nominal account. Rule is debit all expenses. We have debited advertisement. This advertisement will give benefit to the business. So the word benefit hereafter is known as debit. Again children, goods are going out from the business. This stock is decreasing in the business. Stock is classified as an asset and the rule is debit the increase, credit the decrease. तो बच्चों stock decrease हो रहा है, asset decrease हो रहा है बच्चों, that's why हम इसे credit करेंगे जैसे हमने A, B, C में किया. तो बच्चों in all these conditions परचेज को क्रेडिट करने का रूल सेम है, सिंपल है. आपका स्टॉक बिजनेस से डिक्रीज हो रहा है एंड व्हेन सो एवर स्टॉक डिक्रीजेज it is said that your asset is decreasing, and when asset is decreasing children, the rule is credit the decrease in asset represented with purchase account. Following up children further, we have the next D part. हमने कुछ गुड्स को अपने असेट के कंस्ट्रक्शन या क्रिएशन में यूज किया. गुड्स यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ असेट. चिल्ड्रन टेक एन एग्जांपल कि हमारा टिम्बर का बिजनेस है, वुड का, और हमने कुछ वुड यूज कर लिया फर्नीचर बनाने के लिए, अपने ऑफिस में यूज करने के लिए. सो चिल्ड्रन ट्रांजैक्शन कम्स लाइक दिस, द शेडेड पार्ट. टिम्बर और वुड या गुड्स वर्थ रुपीज 12,000 यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर फॉर द ऑफिस. अब बच्चों ये जो फर्नीचर हम अपने ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं, इट इज एन असेट. रूल कैन नॉट बी अप्लाइड चिल्ड्रन डेबिट व्हाट कम्स इन, बिकॉज हम असेट खरीद नहीं रहे, वी आर कंस्ट्रक्टिंग क्रिएटिंग इट ऑन आवर ओन. तो असेट इज एज सच इंक्रीजिंग.
So children, the rule for asset is debit the increase in asset. That's why children, हम फर्नीचर को यहां पे डेबिट कर रहे हैं. And children, stock that is timber is being used up. कम हो जाएगा स्टॉक बिजनेस में बच्चों, हमारी एसेट की वैल्यू गिर जाएगी. द रूल फॉर एसेट इज डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज. बच्चों यहां पे एसेट डिक्रीज हो रही है, दैट्स वाई हमने स्टॉक दैट इज एसेट को क्रेडिट किया यूजिंग परचेज अकाउंट. सो चिल्ड्रन, एट ऑल टाइम्स जब भी आपके गुड्स बिजनेस से डिक्रीज हों और आप इन्हें सेल नहीं कर रहे हैं तो आपको सेल्स अकाउंट कभी नहीं यूज करना बच्चों, आपको परचेज अकाउंट यूज करना है. रिमेंबर दिस. सो चिल्ड्रन, द जर्नल एंट्री बिकम्स फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट द इंक्रीज इन एसेट टू परचेज, दैट इज स्टॉक इज गोइंग डाउन, क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट, रिप्रेजेंटेशन परचेज अकाउंट से हो रहा है. Children, I hope so these 4 cases were quite clear. Go them again and again. आगे चलते हैं बच्चों. We have the next phenomena, that is loss of goods by theft, accident or damage due to flood or fire. Children, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, ध्यान से समझिएगा बच्चों. Children, जब भी हमें लॉस होगा, as it is rightly said, losses belong to the category of expenses. So children, we debit it with the rule debit all expenses and losses. Children, हमने इसी रूल से अपने लॉस को डेबिट कर लिया. बट बच्चों, प्रॉब्लम हेयर इज दिस कि हमने तो ये पढ़ा है कि डेबिट का मतलब बेनिफिट होता है, बट हैंड इन हैंड एक क्वेश्चन उठ जाता है कि जब हम लॉस को डेबिट कर रहे हैं तो ये किस तरह का हमको बेनिफिट दे रहा है. राइटली आस्क्ड चिल्ड्रन, एकदम सही क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में एक्सपेंसेस को तो डेबिट करना समझ में आता है, बिकॉज दे गिव अस सम बेनिफिट, सर्विस मिलती है तो हम इसको डेबिट करें. बट हाउ कम लॉस गिव्स अस एनी बेनिफिट जो हम इसे डेबिट करके बैठ गए. बच्चों, एक बहुत इन डेप्थ एनालिसिस है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से. डेरिवेशन है बच्चों ये एक. चिल्ड्रन, एज वी नो, जब भी इनकम्स होती हैं हम उसे क्रेडिट करते हैं बिकॉज इट इज अ रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइस. और बच्चों, ये जो आपकी इनकम्स हैं, समहाउ आप इन्हीं इनकम से अपने लॉसेस को बेयर करते हैं, झेलते हैं. तो बच्चों, जब आप अपनी इनकम्स में से लॉसेस को बेयर करेंगे, अल्टीमेटली आपकी इनकम की वैल्यू कम हो जाएगी. दैट इज टू से, जब आपकी इनकम बढ़ रही थी तो आप क्रेडिट करते थे, अब जब लॉस बेयर करते टाइम इट इज गोइंग डाउन, इट इज रिड्यूसिंग इन फैक्ट. सो चिल्ड्रन, वी विल डेबिट इट. बट किस लिए डेबिट कर रहे हैं? द आंसर इज फॉर बेयरिंग दीज लॉसेस. दैट्स वाई चिल्ड्रन, हम लॉस को डेबिट करते हैं. इट्स अ डेरिवेशन कॉन्सेप्ट. बच्चों ध्यान से सुनिएगा. व्हेन इनकम्स इंक्रीज, इट्स अ सैक्रिफाइस, वी क्रेडिट इट. एंड व्हेन द लॉसेस आर बोर्न आउट ऑफ सच इनकम्स, जब आप लॉसेस को झेलते हैं इन इनकम्स में से, तो आपकी इनकम्स बच्चों डिक्रीज हो जाती हैं लॉस बेयर करने की वजह से. तो बच्चों, आपकी इनकम्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. क्रेडिट द इंक्रीज बोलते थे बच्चों इनकम को, बट जब इस इनकम से लॉस बेयर करेंगे, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, कम हो जाएगी, तो बच्चों हम इसको डेबिट एस्पेक्ट पे शो करेंगे. दिस इज द डेरिवेशन रूल चिल्ड्रन. दैट्स वाई चिल्ड्रन, हम अपने लॉस को डेबिट करते हैं. कोई बेनिफिट नहीं है, रादर हमारा लॉस हमारी इनकम को ईट अप कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो इनकम इज क्रेडिट एस्पेक्ट इन अकाउंटेंसी. रिवर्सल, जब वो लॉस बेयर करेगी इनकम बच्चों, तो हम उसको रिवर्स करके डेबिट शो करते हैं. दैट्स वाई चिल्ड्रन वी से डेबिट ऑल लॉसेस ऑल्सो विद एक्सपेंसेस. चिल्ड्रन, हमने स्टार्टिंग में बेसिक टर्म्स में पढ़ा था, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट दोनों का अकाउंटिंग एस्पेक्ट सेम नजर आता है, बट डेरिवेशन डिफरेंट है. देन चिल्ड्रन, परचेज को क्रेडिट करने का रीजन सेम है कि हम अपना स्टॉक यहां पे खो दे रहे हैं. स्टॉक डिक्रीज हो रहा है चिल्ड्रन, एसेट डिक्रीज हो रहा है. द रूल इज क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट रिप्रेजेंटेड थ्रू परचेज अकाउंट. तो चिल्ड्रन, वेरी प्रॉपरली रिमेंबर क्यों हमने लॉस को डेबिट किया, बिकॉज ये हमारे इनकम्स को रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है.
So children, I hope so this concept of loss is quite clear. Losses are debited. To purchase इसलिए लिख रहे हैं because stock is going down, asset decrease हो रहा है. तो बच्चों ये डेरिवेशन आपको याद रखना है, बट सिंपल लॉजिक यही है. लॉस को क्यों डेबिट किया? नॉमिनल अकाउंट रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो बच्चों आंसर तो यहां से आ जाएगा, बट इसके पीछे की स्टोरी आपने सुन ली मेरे से. Then children, might be possible these goods are not insured, that is the goods were not insured, and might be possible that they were insured. बच्चों ध्यान दीजिएगा, if the goods are not insured, if the goods were not insured, naturally true बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी क्लेम आपको नहीं मिलेगा, पूरा लॉस आपके बिजनेस पे बर्डन बन के मंडराएगा. सो चिल्ड्रन, अल्टीमेटली हम अपने बिजनेस में एट द एंड ऑफ द ईयर एक समराइज्ड स्टेटमेंट बनाते हैं बच्चों, जहां पे बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, हम सब कुछ लिख देते हैं बच्चों, सब कुछ. तो बच्चों दैट स्टेटमेंट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यस चिल्ड्रन, यू हर्ड इट राइट. हम यहां पे अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस का भी कैलकुलेशन करेंगे, सारे इनकम्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स यहां पे लिखे जाएंगे. तो बच्चों अगर आपके गुड्स का कोई भी इंश्योरेंस नहीं था, नेचुरली ट्रू, आपको कोई भी क्लेम का एंटाइटलमेंट नहीं होगा, योर बिजनेस विल बेयर सच लॉस. आप बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज पर द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यूज करेंगे चिल्ड्रन. आई रिपीट वंस अगेन चिल्ड्रन, इफ द गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, डू नॉट एक्सपेक्ट एनी क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी and you will bear such loss on your own children with the rule debit all expenses and losses. जो डेरिवेशन बच्चों मैंने एक्सप्लेन किया था सेम. एंड जो बच्चों लॉस का अकाउंट आपने एट द वेरी स्टार्ट डेबिट किया हुआ है, अब बच्चों आप इसे क्लोज करेंगे एंड क्रेडिट साइड पे पुट कर देंगे. चिल्ड्रन आई रिपीट अगेन, इफ द गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, नो concept arises for getting any type of claim from the insurance company. Children, जो लॉस आपने डेबिट किया था at the top of the screen you can see to it, आप इसको क्लोज कर देंगे बच्चों. डेबिट क्लोज करना मतलब बच्चों रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना. Like children in mathematics, if plus 10 is somehow to result as 0, प्लस 10 का रिजल्टेंट अगर 0 चाहिए तो बच्चों आप माइनस 10 के साथ उसको एडजस्ट करेंगे. वैसे ही चिल्ड्रन, आपने लॉस को कभी डेबिट किया था, इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे एंड इट विल बी शोन इन द स्टेटमेंट वेयर वील कैलकुलेट आवर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. तो चिल्ड्रन रिमेंबर, व्हाइल डूइंग द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, फर्स्ट एंट्री पास्ड इज लॉस बाय थेफ्ट और एनी रीजन जो भी दिया है, अकाउंट डेबिट टू परचेज, एंड इफ देयर इज नो क्लेम हम नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय व्हाटसोएवर रीजन इज गिवन. द रूल इज चिल्ड्रन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड वी आर क्रेडिटिंग दिस लॉस अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ क्लोजर. चिल्ड्रन आई होप सो दिस इज क्वाइट क्लियर. आगे चलते हैं बच्चों. द नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाउ चिल्ड्रन द गुड्स आर इंश्योर्ड, बट अगेन चिल्ड्रन वी हैव द पॉसिबिलिटी, हमने इंश्योरेंस करवाया था अगेंस्ट थेफ्ट कि अगर गुड्स चोरी हो जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे अस द क्लेम. बट हमारे गुड्स बच्चों चोरी नहीं हुए, हमारे गोडाउन में अ फायर ब्रोक आउट, आग लग गई. तो अगेन चिल्ड्रन इट इज नॉट फुलफिलिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस. हमारा इंश्योरेंस किसी और चीज का था बट लॉस हमें किसी और वजह से हुआ. तो बच्चों अब इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम हमें नहीं देगी एंड सेम एंट्री आफ्टर द फर्स्ट जो हम पास करके बैठे हुए हैं, इसके बाद सेम एंट्री पास करेंगे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय व्हाटसोएवर रीजन इज देयर. बट चिल्ड्रन इफ द गुड्स वर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी बच्चों पूरा क्लेम देने के लिए प्रॉमिस कर रही है, इन दैट केस चिल्ड्रन आप क्या एंट्री करेंगे? रिमेंबर दिस, स्टडी केयरफुली. इंश्योरेंस कंपनी को बच्चों हम डेबिट करेंगे. व्हाई? बिकॉज दे हैव प्रोमिस्ड टू पे अस द मनी. और जब तक बच्चों इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसे दे नहीं देती, दे स्टैंड टू एक्ट एज आर डेटर. चिल्ड्रन, डेटर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ असेट एंड द रूल इज डेबिट द इंक्रीज इन
asset as such. Children, I repeat, हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर लिया विद द रूल डेबिट द इंक्रीज इन असेट. वाई? बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया है बट पैसे अभी दिए नहीं, तो वो हमारे बच्चों डेटर्स हो गए. द रूल इज डेबिट द इंक्रीज इन असेट. दे आर इंडेटेड टू अस. और अब बच्चों ये जो लॉस हमने कभी पहले अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया था, इसका पूरा बर्डन शिफ्ट हो गया बच्चों इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर. तो अल्टीमेटली हमें अपनी बुक से इस अकाउंट को रिमूव करना है. तो बच्चों डेबिट को रिमूव अगर आप करेंगे तो आपको इसे क्रेडिट करना पड़ेगा. तो चिल्ड्रन, द रूल इज इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट बिकॉज दे आर द डेटर्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ असेट. डेबिट द इंक्रीज इन असेट is the rule applied. Why loss is created children? Because बच्चों पहले आपने डेबिट किया था. Now the burden is shifted to the insurance company. हमारे ऊपर नहीं है बच्चों बर्डन, तो हमको उसको कैंसिल करना है, खत्म करना है, क्लोज करना है. Debits would be cancelled children by crediting it. Now children, in future when the insurance company gives us the claim money, they won't be giving us in cash naturally. They will give the money in our bank account. So we'll pass the entry bank account debit. That is to say children, debit the receiver. बैंक में बच्चों पैसे आ गए, आप debit the receiver and insurance company children is the giver. The rule is credit the giver. So children, both side here we happen to see personal accounts. That is artificial personal. So children, I hope so the concept is clear. अगर कोई भी claim नहीं मिला बच्चों, first entry बच्चों जो हमने पढ़ी है that is लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज. ये तो आपको हर कंडीशन में पास करनी ही करनी है. इसके बाद 3 कंडीशंस बच्चों आपको मिल सकती हैं. इफ नो क्लेम इज एडमिटेड, द एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय रीजन जो भी है. इफ फुल क्लेम इज एडमिटेड चिल्ड्रन, इंश्योरेंस कंपनी इज द डेटर और हम उस लॉस को क्लोज कर लेंगे. देन चिल्ड्रन, जब आपको क्लेम का मनी रिसीव होगा, आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस company. Okay children, I hope so this concept is quite clear. The rule is children, debit the receiver, बैंक में पैसे आ रहे हैं, credit the giver बच्चों इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे दे रही है. Children, the third concept could be goods were insured but there were certain clauses in the insurance company which made you get only part of the claim. Partial claim मिला है बच्चों, पूरा पैसा आपको नहीं मिला. तो बच्चों जितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस कर रही है, फॉर दैट दे आर द डेटर्स. जब तक वो पैसा दे नहीं देते, आप इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट करेंगे उस पैसे के लिए बच्चों. देन चिल्ड्रन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर दैट पार्ट जो उन्होंने आपको दे दिया. सॉरी चिल्ड्रन, जो उन्होंने नहीं दिया. सॉरी चिल्ड्रन, आई डू अपोलोजाइज. दैट पार्ट ऑफ मनी जो इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रॉमिस कर रही है, आप इंश्योरेंस कंपनी को बच्चों डेटर बनाएंगे उस पैसे से. एंड दैट पार्ट ऑफ द मनी विच यू आर नॉट सपोज टू गेट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, जो लॉस आपके सिर पे आएगा बच्चों, आप उसको अपने एनुअल सो कॉल्ड प्रॉफिट लॉस के कैलकुलेशन में शो करेंगे. तो वो आपके सिर पे लॉस है बच्चों, आपके मत्थे पे है, तो आप उसका बर्डन बेयर करेंगे पूरी तरह से. यू आर गोइंग टू बेयर द बर्डन ऑफ सच लॉस. तो बच्चों जैसे हमने फर्स्ट कॉलम में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट किया, आप अकॉर्डिंगली यहां पे भी डेबिट कर देंगे. एंड चिल्ड्रन फाइनली, एज वी सेड अर्लियर, हमने स्टार्टिंग में बच्चों लॉस को डेबिट किया था, आज इसे क्लोज करने के लिए हम बच्चों क्रेडिट कर रहे हैं. तो चिल्ड्रन दिस इज नथिंग न्यू. अगर कुछ नहीं मिला आपको इंश्योरेंस कंपनी से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय द रीजन. पूरा पैसा मिल गया बच्चों या मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी आपकी डेटर चिल्ड्रन, आप डेबिट कर देंगे और लॉस को क्लोज करेंगे. एंड द थर्ड कंडीशन चिल्ड्रन, पार्शियल क्लेम इज बीइंग एडमिटेड, कुछ मिला है कुछ नहीं मिला, तो दैट मनी विच इज प्रोमिस्ड इंश्योरेंस कंपनी बच्चों डेटर, और जो पैसा बच्चों आपको नहीं मिलना जिसका बर्डन आप बेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे बच्चों. एंड लॉस अकाउंट विच वॉज डेबिटेड अर्लियर चिल्ड्रन इन द फर्स्ट एंट्री विल नाउ बी क्लोज्ड. देन चिल्ड्रन, आपको इंश्योरेंस कंपनी जब पैसे दे देगी, debit the receiver, money will come into your bank account, credit the giver, insurance company is the giver. So children, I hope so this concept of claim is quite clear. Children, just adhere to the first and second column very properly, because third column is just the addition of these two.
So children, I hope so the concept of insurance is quite clear. So children, remember again and again I am saying first entry, that is loss occurrence की आपको पास करनी है. इंश्योरेंस हो ना हो, पार्शल क्लेम मिले, फुल क्लेम मिले, कोई क्लेम ना मिले, दिस फर्स्ट एंट्री इज टू बी डन कंपल्सरली. Then we'll see to it what condition is being applied and accordingly we'll do the entry. Children, moving down further, we have the concept of what is called as return of goods as such. Children, we have studied the concept of goods in basic terms. When we buy them, the word used is purchase. When we sell them, the word used is sales. Customer ने बच्चों हमसे goods खरीदे, but he was not satisfied due to any of the reason. Might be possible कि हमने defective goods supply कर दिए, तो वो goods हमको वापस कर देगा बच्चों. So children, goods returned by customer to our business is called as sales return or return inward. Children, the example is Sonu, a customer, returned goods worth rupees 12,000. हमारे customer ने बच्चों हमको goods वापस किए. So children, return of goods from the customer to our business is known as sales return or return inward, and the customer is the giver. So children, on customer we apply the rule for personal account, that is credit the giver. Accordingly children, in the example हमने सोनू द कस्टमर को क्रेडिट कर दिया. Then goods children belong to the category of sales return here, क्योंकि वो वापस आ रहे हैं. So children, the rule is debit the decrease in income. Why? जब बच्चों हमने गुड्स सेल किए थे तो हमारी इनकम इंक्रीज हुई थी. आज बच्चों गुड्स वापस आ रहे हैं तो अब वो इनकम एक तरह से मटीरियलाइज ही नहीं की है, तो आपको उसको कैंसिल करने के लिए बच्चों रिवर्स ऑर्डर में नोट करना पड़ेगा. सेल्स को बच्चों हम क्रेडिट करते थे, तो रिवर्स हम सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे. और वी कैन डेबिट रिटर्न इनवर्ड ऑल्सो. सो चिल्ड्रन, एंट्री बिकम सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सोनू. चिल्ड्रन, आई रिपीट, जब भी गुड्स वापस आएंगे द एंट्री इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सोनू, दैट इज कस्टमर्स नेम. वाई? डेबिट द डिक्रीज इन इनकम and credit the giver. Children, मैंने एक ट्रिक आपके लिए यहां पे यूज की है, दो इट इज wrongful to say about this trick, बट हम आंसर लाने के लिए इसको एक्नॉलेज कर सकते हैं. थोड़ी देर के लिए बच्चों अज्यूम कर लीजिए कि गुड्स रियल अकाउंट है. एक्चुअली इट इज नॉट. चिल्ड्रन, एक्चुअली इट इज नॉट, बट थोड़ी देर के लिए आप एक अजम्पशन ले लीजिए, गलत अजम्पशन. तो आप बोल सकते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन. गुड्स आ रहे हैं इसलिए आपने इसको डेबिट कर दिया. बच्चों, इस रूल से आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, बट एक्चुअली इट इज नॉट टू बी अप्लाइड इन प्रॉपर प्रैक्टिस. बच्चों, ये कॉन्सेप्ट गलत है, बिकॉज सेल्स रिटर्न की कैटेगरी नॉमिनल है बच्चों, नॉट रियल. तो व्हेन वी सेल गुड्स, इट्स इनकम, हम क्रेडिट करते हैं बच्चों. गुड्स आर कमिंग बैक, इनकम इज डिक्रीजिंग. सो चिल्ड्रन, हम इसको रिवर्स ऑर्डर में, दैट इज डेबिट डायरेक्शन में नोट करेंगे. बट अगर आप ट्रिक अप्लाई करना चाहते हो, गुड्स आर कमिंग बैक, they are coming into our business, as per real account debit what comes in से बच्चों आपका आंसर तो आ जाएगा, बट अवॉइड यूजिंग दिस रूल. थ्योरी में कभी भी इसको मत लिखिएगा, आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं आंसर लाने के लिए इस गलत ट्रिक को. आंसर 100% करेक्ट आएगा बच्चों, बट थ्योरेटिकली डू नॉट आंसर दिस एनीवेयर. इट इज डेबिट द डिक्रीज इन इनकम, क्योंकि आपके गुड्स वापस आ गए और आपकी इनकम कम हो गई. So children, I have shown a cancellation mark also. Practically आंसर लाने के लिए आप यूज कर लीजिए, बट theoretically never say to anybody कि सेल रिटर्न इसलिए डेबिट हो रहा है because debit what comes in, not at all. It is debit the decrease in income. So children, I repeat, the entry for sale return is sale return account debit to Sonu, that is customer's account, debit the decrease in income, credit the giver. आगे चलते हैं बच्चों. अगर हमने गुड्स खरीदे सप्लायर से बच्चों, इट वॉज परचेज, बट एक्सेस गुड्स सप्लाई कर दिए गए हमको या डिफेक्टिव आ गए, तो हम इन्हें वापस कर देंगे. एंड खरीदा हुआ सामान वापस करना इज कॉल्ड एज परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड. चिल्ड्रन, अगेन द ट्रांजैक्शन इज एग्जाम्प्लिफाइड हेयर. गुड्स वर्थ रुपीज 12,000 वर रिटर्न्ड टू मोहन, अ सप्लायर. सो चिल्ड्रन, मोहन बीइंग अ रिसीवर
हम डेबिट कर देंगे. द रूल इज डेबिट द रिसीवर. एंड परचेज जब आपने किया था बच्चों, इट वॉज एन एक्सपेंस एट दैट टाइम, बट नाउ दीज गुड्स आर बीइंग रिटर्न्ड बैक. ये वापस जा रहे हैं बच्चों, तो इनसे हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो हमारा एक्सपेंस भी बच्चों डिक्रीज हो गया. जब एक्सपेंस होता था बच्चों हम डेबिट करते थे, डिक्रीज दैट इज हम ऑपोजिट डायरेक्शन में रिकॉर्ड करेंगे, तो बच्चों ये क्रेडिट हो जाएगा. चिल्ड्रन रिमेंबर द एंट्री, डेबिट द रिसीवर. मोहन इज द रिसीवर, हमने डेबिट किया. टू परचेज रिटर्न अकाउंट और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट. वाई वी आर क्रिएटिंग परचेज रिटर्न चिल्ड्रन? बिकॉज जब बाय किया था इट वॉज एन एक्सपेंस, हमने डेबिट किया. नाउ एक्सपेंस इज बीइंग रिड्यूस्ड, इसलिए बच्चों हम इसे क्रेडिट कर देंगे. बट बच्चों मैंने आपको एक रॉन्ग ट्रिक रूल भी यहां दे दिया है. गुड्स जा रहे हैं बच्चों, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल आप अप्लाई कर सकते हैं बच्चों आंसर लाने के लिए, बट प्लीज डू नॉट डू इट बिकॉज एक्चुअली दिस इज नॉट द वर्केबल रूल हेयर. ट्रिक के हिसाब से बच्चों आंसर आपका जरूर आ जाएगा, बट प्लीज अवॉइड डूइंग इट. दैट्स वाई चिल्ड्रन मैंने उसके ऊपर एक कैंसिलेशन मार्क लगा दिया. आंसर आ जाएगा आपका, बट थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट ये नहीं है. तो बच्चों प्रैक्टिकली आंसर निकालने के लिए थोड़ा सा फ्रॉड कर सकते हैं, बट रियलिटी में इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. अगेन जब गुड्स बाय किए थे, परचेज डेबिट किया था बीइंग एन एक्सपेंस, आज हम इन्हें वापस कर रहे हैं, सो कॉल्ड हमारा एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है. रिवर्स बच्चों हम इसको क्रेडिट में नोट कर देंगे. तो चिल्ड्रन रिमेंबर, सेल्स रिटर्न विल ऑलवेज बी डेबिटेड एंड परचेज रिटर्न विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड. हाउ टू रिमेंबर दिस? परचेज बच्चों डेबिट होता था तो उसका रिवर्स परचेज रिटर्न क्रेडिट. सेल्स क्रेडिट होता था गुड्स बेचते टाइम, तो वापस आते टाइम उसका ऑपोजिट डेबिट. रूल इज देयर. कस्टमर जब हमको कुछ दे रहा है वापस, ही इज द गिवर, क्रेडिट कर देंगे. हम सप्लायर को कुछ दे रहे हैं, दे आर द रिसीवर चिल्ड्रन, हम इन्हें डेबिट कर देंगे. चिल्ड्रन देन वी हैव द कॉन्सेप्ट कि जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं तो देर आर सर्टन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड. Children, what they are, we'll be taking them up in the upcoming videos, not now. Children, next in sequence we have started business with multiple assets. The transaction would be like this, children. Mohan, the owner, commenced business with cash 40,000, furniture 12,000, stock 8,000 and machinery 4,000. Children, till now we used to have only cash with which we used to start business. बट बच्चों नाउ वील बी हैविंग मल्टीपल असेट्स. तो बच्चों बहुत सिंपल है, ऑल द असेट्स विच आर कमिंग इन टू द बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इन और डेबिट द इंक्रीज इन असेट एंड क्रेडिट द गिवर. तो चिल्ड्रन इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था, बस कंपाउंड एंट्री है बच्चों ये, बिकॉज ऑल असेट्स आर कमिंग इन टू द बिजनेस ऑन द सेम डे. तो बच्चों एंट्री में हर जगह गिवर ओनर ही है. तो चिल्ड्रन ऑल द असेट्स विच आर कमिंग इन हम डेबिट कर देंगे. रिमेंबर चिल्ड्रन, इन प्लेस ऑफ स्टॉक गुड्स आप स्टॉक इन ट्रेड यूज करेंगे, परचेज मत यूज करिएगा बिकॉज आप खरीद नहीं रहे हैं. देन चिल्ड्रन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ लोन. बच्चों लोन हम दे भी सकते हैं एज वेल एज ले भी सकते हैं. चिल्ड्रन इफ लोन इज गिवन टू समबडी, द एग्जाम्पल इज गेव ₹80,000 एज लोन टू रहीम. चिल्ड्रन रहीम इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, रहीम्स लोन अकाउंट डेबिट. टू कैश, अगर बच्चों कैश दिया और चेक दिया बच्चों तो टू बैंक. रूल इज डेबिट द रिसीवर, कैश गया बच्चों, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चेक के थ्रू दिया तो बैंक से पैसा निकलेगा, क्रेडिट द गिवर. एंड इफ चिल्ड्रन द लॉजिक इज दैट इज लोन इज टेकन फ्रॉम समबडी, टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम रोहन. So children took a loan of ₹80,000 from Rohan. If cash is coming, debit what comes in. चेक के थ्रू बच्चों अगर पैसे आ रहे हैं तो we'll simply write bank account debit because money will flow into bank now. To Rohan's loan account children because Rohan is the giver. So children it's very simple. जब आपने लोन दिया किसी को तो आप रिसीवर बोल के उसे डेबिट करेंगे और लोन लिया किसी से बच्चों तो आप गिवर बोल के उसको क्रेडिट करेंगे. तो अब चिल्ड्रन मनी इज कमिंग इन, कैश अ बैंक डेबिट, गोइंग आउट कैश अ बैंक चिल्ड्रन क्रेडिट. सो चिल्ड्रन आई होप सो द कॉन्सेप्ट ऑफ लोन इज वेरी क्लियर. लोन जब आप किसी को देंगे तो आप उस पर्सन को बच्चों डेबिट कर दीजिएगा और लेंगे तो क्रेडिट कर दीजिएगा, रिसीवर और गिवर रिस्पेक्टिवली के कॉन्सेप्ट से.